بلٹن میں خوش آمدید۔ آغاز میں آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف سرکاری دورے پر قطر پہنچ گئے۔ دوحہ ایئرپورٹ پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم کی امیر قطر سے اہم ملاقات متوقع۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اپنے سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے، جہاں قطر کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور سلطان بن سعد نے ان کا اور پاکستانی وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ دوحہ ایئرپورٹ پر وزیر اعظم اور وفد کو قطری مسلح افواج کے چوبند دستے نے سلامی پیش کی، جبکہ آمد کے موقع پر ایئرپورٹ اور شہر کو پاکستانی پرچموں سے سجایا گیا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے ملاقات کریں گے، جس میں دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور عالمی امن کے لیے پاکستان کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا، پاکستان اس وقت امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا اہم کردار ادا کر رہا ہے اور خطے میں امن کے لیے پرعزم ہے۔ مزید بتایا، اسلام آباد مذاکرات کے انعقاد میں وزیر اعظم شہباز شریف نے بھرپور کردار ادا کیا، جبکہ پاکستان کی سفارتی کوششوں کو عالمی سطح پر سراہا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے مختلف علاقائی ممالک کے رہنماؤں سے رابطے کیے، جبکہ فیلڈ مارشل کل تہران پہنچے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم بھی امن مذاکرات کے انعقاد کے لیے مسلسل سرگرم ہے۔ مزید کہا، پاکستان کی کوششوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ممکن ہوئی۔ انہوں نے کہا، ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات تقریباً 21 گھنٹے جاری رہے، جبکہ مجموعی سفارتی عمل تقریباً 30 گھنٹے پر محیط رہا۔ دونوں وفود نے پاکستانی حکومت سے ملاقاتیں کی اور پورا عمل مجموعی طور پر تعمیری رہا۔ اعظم شہباز شریف نے وفد کے ہمراہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف گزشتہ شب جدہ سے مدینہ منورہ پہنچے تھے۔ اس موقع پر گورنر مدینہ شہزادہ سلمان بن سلطان نے وزیر اعظم اور پاکستانی وفد کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفد کے لیے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کھولے گئے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور سلام عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے ملک و قوم کی ترقی اور دنیا بھر میں امن و آشتی کے لیے دعائیں کی۔ واضح رہی، گزشتہ روز وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ سعودی عرب روانہ ہوئے تھے۔ شہر قائد میں سال کے ابتدائی 3 ماہ کے دوران مختلف علاقوں میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی چوری اور چھیننے کی وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ SSPAVLC کے مطابق گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال گاڑیوں کی چوری اور چھیننے کی شرح میں کمی واقع ہوئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات عارف حبیب کی اس رپورٹ میں۔ کراچی کے مختلف علاقوں سے شہریوں کی موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں کی چوری اور چھینے جانے کے واقعات میں کمی نہ آ سکی۔ 3 ماہ کے دوران مختلف علاقوں سے 8000 سے زائد موٹر سائیکلیں چوری ہوئیں۔ سال کے ابتدائی 3 مہینوں میں 1309 متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے شہروں کی موٹر سائیکلیں گن پوائنٹ پر چھینی گئیں۔ ان وارداتوں کے حوالے سے SSPAVLC خالد مصطفیٰ قرائی کہتے ہیں، گزشتہ سال کے مقابلے میں سال 2026 میں 4 ویلر گاڑیوں کے چھیننے اور چوری ہونے کی وارداتوں میں کمی واقع ہوئی۔ 2025 میں جتنا کرائم تھا اس کے مقابلے میں 2026 میں 40% کم ہوا ہے۔ ریکوری بھی سمجھے 70% اوپر ہوئی ہیں 2025 سے 2026 میں، مطلب بہت بڑا ایک فرق آیا ہے۔ AVLC پولیس کی جانب سے شہر بھر میں کالفٹا گروہ کے خلاف روزمرہ کی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن شہری کہتے ہیں غریب کی موٹر سائیکل کی بازیابی دیوانے کا خواب، جبکہ امیر اور بااثر شہروں کی گاڑی کی بازیابی 24 گھنٹوں میں کر لی جاتی ہے۔ کیمرامین مظہر کے ساتھ عارف حبیب، NTA نیوز، کراچی۔ خبر دیں گے، پاک بحریہ نے شمالی بحیرہ عرب میں مقامی طور پر تیار کردہ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک بحریہ کے جہاز سے فائر کیے گئے اس برق رفتار میزائل نے طویل فاصلے پر موجود اپنے ہدف کو انتہائی درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ یہ میزائل جدید ترین گائیڈنس سسٹم سے لیس ہے۔ اس سے دشمنی کے دفاعی نظام کو چکمہ دینے اور اپنے ہدف کو کامیابی سے تباہ کرنے کی صلاحیت فراہم کرتی ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے اس منصوبے سے منسلک سائنسدانوں اور انجینئرز کے ہمراہ میزائل فائرنگ کے عمل کا خود مشاہدہ کیا۔ انہوں نے اس کامیاب تجربے کو پاک بحریہ کی تکنیکی برتری اور اعلیٰ عملی مہارت کا ثبوت قرار دیا۔ اس تاریخی کامیابی پر صدر پاکستان، وزیر اعظم، چیف آف ڈیفنس فورسز اور تمام سروسز چیف نے متعلقہ یونٹس اور سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کی۔ خبر یہ ہے، ایرانی رہبر اعلیٰ کے مشیر محسن رضائی نے اپنے بیان میں کہا، حقوق مکمل طور پر تسلیم ہونے تک آپ نہ ہرمز کا کنٹرول نہیں چھوڑیں گے۔
محسن رضائی نے اپنے بیان میں کہا اگر ایرانی بحریہ تباہ ہو چکی تو پھر امریکہ آمنہ ہرمز سے کیوں نہیں گزرتا؟ امریکی حکومت مسلسل جنگ سے خوفزدہ ہے۔ دوسری جانب امریکی سینٹ کام کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا امریکی فوجی اہلکار آبنہ ہرمز سے کڑی ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ ایرانی بندرگاہوں میں داخل یا باہر جانے والے جہازوں کی نگرانی کے لیے گشت جاری ہے۔ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں ہوش اور با اضافہ ہو گیا۔ دودھ، آٹا اور سبزیوں سمیت ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے۔ شہری شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ تفصیلات مہام خان کی اس رپورٹ میں۔ قائد میں مہنگائی کا طوفان شدت اختیار کر گیا۔ دودھ اور آٹے سمیت ہر چیز کی قیمت میں اضافہ، عام آدمی سخت پریشانی میں مبتلا، قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں، عام آدمی کی زندگی شدید متاثر ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آمدن کم اور اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، گھریلو بجٹ بنانا مشکل ہو گیا ہے، جبکہ تنخواہ دار طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ عام آدمی کو جو مہنگائی ہے اس نے جینے کے قابل نہیں چھوڑا ہے۔ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کے اخراجات پورے کریں، ان کے میڈیکل کے اخراجات پورے کریں، ان کی اسکول کی فیسیں پوری کریں، یا ان کو اسکول بھیجنے والی جو وینیں ہیں، جو گاڑیاں ہیں، ان کا کرایہ دیں۔ دیکھیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، ہمارے غریبوں کی گنجائش سے باہر ہو گئی ہے۔ کرائے ہیں تو وہ بڑھ گئے ہیں، پیٹرول کی قیمتیں کم کی ہیں لیکن انہوں نے گاڑیوں والوں نے کم نہیں کی، کرایہ وہی لے رہے ہیں۔ پیٹرول بڑھا تھا تو انہوں نے اس سے بھی زیادہ کرایہ بڑھا دیا، اب پیٹرول کم ہو گیا تو اس سے زیادہ اور بڑھا رہے کرایہ۔ اب کم کا تو کوئی ہونا چاہیے نا۔ ماہرین کے مطابق مہنگائی میں اضافے کی بڑی وجوہات میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ اور معاشی عدم استحکام شامل ہیں، جبکہ عوام فوری ریلیف کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ماہم خان، NTN نیوز، کراچی۔ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ جو ممالک ایران کا تیل خریدیں گے انہیں بھی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ واشنگٹن نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ چین ممکنہ طور پر ایران سے تیل خرید رہا ہے اور اسے روک دینا چاہیے۔ امریکی وزیر خزانہ نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن نے دیگر ممالک کو آگاہ کر دیا ہے اگر وہ ایران کا تیل خرید رہے ہیں یا ان کے بینکوں میں ایرانی رقوم موجود ہیں تو ان پر پابندیاں عائد کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف سمندری ناکہ بندی پیر کے روز شروع کی گئی اور جنگ 7ویں ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ چین اس سے قبل ایران کے برآمدات کے لیے تیل کا 80% سے زائد ذخیرہ خریدتا تھا۔ توقع ہے کہ اس ناکہ بندی کے نتیجے میں چینی خریدار عارضی طور پر ایرانی تیل کی خریداری روک دیں گے۔ امریکی محکمہ خزانہ نے چین کے 2 بینکوں کو خط لکھ کر منتبہ کیا ہے کہ اگر ان کے اکاؤنٹس کے ذریعے ایرانی رقوم کی ترسیل ثابت ہوئی تو ان پر بھی پابندیاں عائد ہوں گی۔ ایرانی فوج نے ایرانی سمندروں کی امریکی ناکہ بندی کے جواب میں بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت بند کروانے کی دھمکی دے دی۔ ایرانی فوج نے امریکی بحریہ کی طرف سے ایرانی سمندر کی ناکہ بندی کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایران کی ٹاپ جوائنٹ ملٹری کمانڈ خاتم الانبیاء کے سینٹرل ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان میں کہا گیا ایران کی تمام بندرگاہوں کی ناکہ بندی کا جاری رہنا جنگ بندی کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے اگر یہ ناکہ بندی جاری رکھی گئی تو ایران کی مسلح افواج بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت کی اجازت نہیں دے گی۔ فوجی حکام کے مطابق ناکہ بندی جاری رہنے کی صورت میں خلیج اور عمان سے ہونے والی ہر برآمدات اور درآمدات کو رکوا دیں گے۔ آزاد جموں و کشمیر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کرنے والے مبینہ کارندے کو گرفتار کر لیا۔ IG پولیس آزاد کشمیر لیاقت علی ملک نے نیوز کانفرنس میں بتایا راولاکوٹ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم عرفان کو حراست میں لے لیا جو حساس مقامات کی ریکی کر کے ویڈیوز اور معلومات بیرون ملک منتقل کرتا تھا۔ IG کے مطابق ملزم فوجی تنصیبات اور تعلیمی اداروں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی میں ملوث تھا۔ کارروائی کے دوران ایک مکمل نیٹ ورک بھی بے نقاب ہوا جو سوشل میڈیا کے ذریعے رابطوں میں رہ کر اہم معلومات شیئر کر رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے کے 10 اضلاع میں نئی الیکٹرو بسیں فراہم کرنے کی منظوری دے دی۔ فیصلہ ایک اعلیٰ سطح اجلاس میں کیا گیا جس میں ماحول دوست ٹرانسپورٹ نظام پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا فری ٹرانسپورٹ پروگرام سے 1.25 لاکھ سے زائد مسافر مستفید ہو چکے ہیں جبکہ 3,560 بس ٹرپس مکمل کیے جا چکے ہیں۔ منصوبے کے تحت 10 اضلاع میں نئی الیکٹرو بسیں فراہم کی جائیں گی اور ہر ڈویژن میں خصوصی ڈپو بھی قائم ہوں گے۔ رواں ماہ 100 بسیں، مئی میں 350 اور جون تک مزید 264 بسیں پہنچنے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ نے تحصیل سطح پر 1500 الیکٹرک بسوں کے پلان کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے۔
वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना इजलास में 21 नकात पर गौर करते हुए अहम फैसले किए गए। इजलास में ज़रई इस्लाहात, माली नज़्म ज़ब्त और इदारा जाती कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया गया। काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया कि मार्केट कमेटियाँ खुद मुख्तार इदारे हैं और उन पर 2.7 अरब रुपये से ज़ायद की रिकवर्स वाजिबुल अदा हैं, जिस पर वज़ीर आला ने रिकवरी निज़ाम बेहतर बनाने और माली नज़्म ज़ब्त मजबूत करने की हिदायत की। इजलास में सिंध फार्मर्स एग्रीकल्चर कलेक्टिव एक्ट 2026 के मुसव्वदे का भी जायज़ा लिया गया, जिसके तहत हारियों को इज्तमाई सतह पर काम करने का कानूनी इख्तियार दिया गया। कराची के इलाके कोरंगी में रेंजर्स ने चीता गैंग के 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान पर 100 से ज़ायद वारदातों में मुलव्वस होने का इंकशाफ भी सामने आया है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन्स और जाली कार्ड बरामद कर लिए गए हैं। आपको बताते चलें, कराची के इलाके कोरंगी से ये खबर है, रेंजर्स ने चीता गैंग के 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़िमान से 100 से ज़ायद वारदातों में मुलव्वस होने का भी इंकशाफ सामने आ गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन्स और जाली कार्ड्स बरामद कर लिए गए हैं। कराची के इलाके कोरंगी से खबर दे रहे हैं आपको, रेंजर्स ने चीता गैंग के 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़िमान पर 100 से ज़ायद वारदातों में मुलव्वस होने का इंकशाफ सामने आया है। मज़ीद साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। मज़ीद जानते हैं सहर खान से। जी सहर, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, कराची के इलाके कोरंगी से जो है बड़ी खबर सामने आई है, जहां रेंजर्स ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए खतरनाक ग्रोह चीता गैंग के 2 अहम मुल्ज़िमान को जो है गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में से गैंग का मुबैना सरगना मोहम्मद हुसैन जो है उसका साथी अब्दुल वाहिद शामिल है। रेंजर्स हुक्काम के मुताबिक ये दोनों मुल्ज़िमान कोरंगी और उसके मलैका इलाकों में जो है डकैती, स्ट्रीट क्राइम और मोटरसाइकिल चोरी जैसी मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस थे। मुल्ज़िमान खुद को सिक्योरिटी एहलकार जो है वो जाहिर करते थे। चेहरे को जी करने का एतराफ़ भी किया है। कार्रवाई के दौरान मुल्ज़िमान के कब्जे से जो है मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और एक जाली सरकारी कार्ड, सिक्योरिटी कंपनी का बेल्ट और नकदी भी जो है वो बरामद हुई है। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए जो है मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे गए हैं, जबकि इन्हें मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया सहर खान, हमें आगाह कर रही थी। तर्जुमान हुकूमत सिंध सैयदा तहसीन आबदी ने चीफ मिनिस्टर पब्लिक कंप्लेंट सेल में ड्यूटी अंजाम देते हुए शहरियों की शिकायत का जायज़ा लिया और उनके फौरी हल के अहकामात जारी किए। इस दौरान वो कंप्लेंट सेल में मौजूद रहीं और आवाम की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत को तफसील से सुना। शहरियों ने 919 और दीगर हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल्स के जरिए अपने मसाइल दर्ज करवाए, जिन पर तर्जुमान सिंध हुकूमत ने मुतालिका हुकाम को फौरी कार्रवाई की हिदायत दी। उन्होंने कहा, तमाम शिकायत को तरजीही बुनियादों पर जल्द अज जल्द हल किया जाए। सैयदा तहसीन आबदी ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक अवामी मसाइल का फौरी और मौसर हल हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। मजीद कहा, सैयद मुराद अली शाह की क़यादत में हुकूमत सिंध अवामी खिदमत के लिए मुतहरक है और शहरियों के मसाइल के बरवक्त हल के लिए तमाम मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। कराची का एक और प्रोजेक्ट करप्शन और बदउनवानी का शिकार। सिंधी मुस्लिम ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट करप्शन की नज़र हो गया। सड़क पर कारपेट होने के बावजूद नाक़िस तरीके से पेवर ब्लॉक लगाने का अमल जारी है। इस वक्त नुमाइंदा NTN न्यूज़ राशिद अनवर मौके पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी राशिद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की एक मेन शारा है, चनेसा टाउन में आती है ये। अच्छा, यहाँ में एक तो आपको मेरे अकब में बज़ाहिर आपको लग रहा है तरक्याती, इस कानून में मैं आपको दिखाऊं कि जो रोड, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखे, ये मट्टी बिछाकर इसके ऊपर जो है ना इन्होंने पेवर ब्लॉक लगाए। दूसरी जानिब मैं आपको बताता चलूँ कि किसी कानून में नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये जो है एक कानून में है किस तरह रोड मतलब पेवर ब्लॉक रोडों पर लगाए जा सके। दूसरी जानिब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि पेवर ब्लॉक अगर आपने लगाने तो सबसे पहले आपने इस रोड को उखाड़ना होगा। उखाड़ने के बाद इसमें क्रश आती है, जो पत्थर होते हैं वो बिछा के उसके ऊपर बजरी बिछा के उसके ऊपर खाका बिछा के उसके ऊपर ये जो है पेवर ब्लॉक लगते हैं, ताकि अगर खुदा ना खास्ता इस हालत में अगर बारिश हो जाती है तो अगर बारिश होगी तो ये जो रोड है ये मुकम्मल तौर पर भे जाएगा। रोड भे जाने की वजह से जो ये पेवर ब्लॉक पर लाखों रुपए खर्च किए गए ये ज़ाया हो जाएंगे। जी बिल्कुल, अलमिया ये है कि हमारे इंजीनियर या हमारे ठेकेदार या हमारे कॉन्ट्रैक्टर जितने भी हैं वो दावे तो बड़े करते हैं लेकिन अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं। अब देखना नाजरीन और जो देखने वाले सीनियर जो कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं वही फैसला करेंगे कि आया कि ये रोड सही है, ये तरीकाकार सही है या नहीं। जी।
अब आपको बताएं, सिंध के सूबाई वजीर अली हसन जरदारी की वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से कराची में अहम मुलाकात हुई। सिंध की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अमन व अमान के क़याम, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और तरक्याती कामों की रफ्तार को मज़ीद बेहतर बनाने के आज़म का आदा किया। इस मौके पर इस बात पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने के लिए वफाक और सूबे के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप को मज़ीद मजबूत और मौसर बनाया जाएगा। रहनुमाओं ने बाहमी ताउन के फ़रोग़ और मरबूत हिकमत अमली के ज़रिए सिंध खुसूसन कराची में इस्तेहकाम और तरक्की को यकीनी बनाने पर भी जोर दिया। कराची के इलाके जहांगीर रोड में के इलेक्ट्रिक की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। इलाका मकीन कहते हैं सिर्फ 8 घंटे बिजली आती है। हमारे नुमाइंदे आरिफ हबीब इलाके में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी आरिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके जहांगीर रोड मॉडर्न रोड पे, जहाँ पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो गैर एलानिया और एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला है वो जारी है बदस्तूर। यहाँ के मकीन जो है वो सख्त परेशानी में मुब्तला है, कारोबारी जिंदगी में मुतासिर हो रहा है, जबकि घर में जो खवातीन और बच्चे हैं वो भी इस परेशानी का शिकार है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा, शहर भर की तरह मुख्तलिफ इलाकों में जो लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जहांगीर रोड मॉडर्न रोड में भी वही सिलसिला है? तकरीबन बहुत ज़्यादा है। हम बहुत सख्त परेशानी में हैं। मेरी वालदा बीमार हैं, घर में सख्त तरीन ब्लड प्रेशर की भी मरीज हैं, सांस की भी मरीज हैं। 24 घंटे के अंदर जो है लाइट मुश्किल से अगर आ रही है तो 6 घंटे 7 घंटे की लाइट है। बाकी तमाम वक्त इंसान परेशानी में है। किससे कहें, ना सियासी लोग सुनने को तैयार हैं, ना जो ऐवानों में बैठे में ये हमारी सुनवाई कर रहे हैं। किसी के पास हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। सख्त तरीन परेशानी में मुब्तला है। किससे फरियाद करें, किससे कहें? आपसे गुजारिश है कि हमारी इस फरियाद को इन जो भी ये महकमे वाले हैं इन तक पहुंचाया जाए ताकि हम इस परेशानी से मुश्किल से निकलें। जी बिल्कुल, हमारी जो शायरी से बात हुई उनका यही कहना था कि के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है वो बदस्तूर है। इसके साथ साथ बिजली होती नहीं, लेकिन जो बिल है वो भी भारी भरकम आ रहे हैं, जिसके बाईस जो इलाका मकीन है, जो यहाँ के इलाके के रहने वाले हैं, वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। उनका यही अरबाब इख्तियार से मुतालबा है कि इस फौरी जो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला है उसको ख़त्म किया जाए और जो बिजली के भारी भरकम बिल है इन पर भी नज़रसानी की जाए। जी। कराची में आईजी सिंध जावेद आलम ओढो ने ट्रैफिक पुलिस की तकरीब में शिरकत के दौरान जदीद ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम ट्रैक्स का इफ्तिताह किया। हुक्काम के मुताबिक शहर में 1000 से ज़ायद कैमरे नस्ब किए जा चुके हैं, जबकि मज़ीद 2000 कैमरे लगाने का मंसूबा है। जदीद निज़ाम के तहत ड्रोन और रोबो कार्स यूनिट भी मुतारफ़ करवाया गया। फेसलेस ई चालान सिस्टम के जरिए ट्रैफिक कवानीन की खुदकार निगरानी शुरू कर दी गई है, जबकि 20,000 से ज़ायद बड़ी गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम नस्ब किया जा चुका है। हुक्काम के मुताबिक CCTV कैमरों की मदद से जराइम में 30 से 40% कमी आई है। IG सिंध का कहना है सेफ सिटी सिस्टम को मज़ीद वसअत दी जा रही है और हैदराबाद में भी जल्द अज जल्द ट्रैफिक सिस्टम शुरू किया जाएगा। किसी भी मुआशरे में सड़कों पर बैनर नहीं लगे होते। लाहौर इस्लामाबाद में भी ऐसी सूरत हाल नहीं है। कराची में बैनर्स और वॉल चॉकिंग के बढ़ते हुए रुझान पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का सख्त रद्द अमल सामने आ गया। कहा, शहर को साफ रखने के लिए कानून पर सख्ती से अमल किया जाएगा। इजहार राय की आज़ादी कानून की पासदारी से मशरूत है। शहर में बैनर या वॉल चॉकिंग गैर कानूनी है। किसी भी माशरे के अंदर ये सड़कों पे बैनर लगे हुए होते हैं इस तरीके से, बल्कि कराची से बाहर जाइए आप, इस्लामाबाद लाहौर में आपको एक चीज़ नज़र आती है और मुझे हैरत ये होती है कि जो लोग कह रहे हैं कराची को साफ़ करो, वो बैनर के ज़रिए कर रहे हैं। वो कराची की पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर, सिग्नल्स के ऊपर, चौराहों के ऊपर इस तरह के बैनर लगा देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम सब ये चाहते हैं शहर को साफ़ रखा जाए तो हम सबका ये फरीदा है कि अपना अपना इस हवाले से किरदार अदा करें। जो दूसरी चीज़ है जो मैंने दुकानों के हवाले से कहा, कोई दुकान अगर अपना लॉफुल प्रोफेशन करना चाहती है, जो प्रिंटिंग का काम है, प्रिंटिंग प्रेस वाले बिल्कुल अपना काम करें, लेकिन जो बैनर सड़कों पे लगेंगे ये इसकी कोई इजाज़त नहीं है, बिकॉज ये जो बैनर्स लगाने वाले हैं कुछ सरकार को टैक्स या चार्जेस पे नहीं करते, तो कम्प्लीटली गैर कानूनी चीज़ें। तो मैंने उन दुकानदारों को ये कह रहा हूँ कि आप क्यों किसी गैर कानूनी काम का हिस्सा बनते हैं।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। डिस्को ज़राए के मुताबिक गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बिजली का शॉर्ट फॉल 4000 मेगावाट से कम न हो सका। ज़राए का कहना है वजारत तवानाई बिजली की पैदावार बढ़ाने में नाकाम हो गई और डिस्कोज़ को लोड बैलेंस की हिदायत जारी कर दी है। ज़राए के मुताबिक सनतों को भी लोड शेडिंग शेड्यूल में शामिल कर दिया गया है। इंडस्ट्री के लिए 2 से 3 घंटे बिजली बंदिश का आगाज़ किया गया, जबकि बंद पावर प्लांट्स को दोबारा चलाने पर गौर शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा हाइडल पैदावार बढ़ाने और मज़ीद 90 मिलियन क्यूबिक गैस हासिल करने का फैसला किया गया। दूसरी जानब इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 7 से 8 घंटे तक पहुँच गया। कराची में बिजली की लोड शेडिंग तलबा के लिए अज़ाब बन गई। लोड शेडिंग के बायस इम्तहानात की तैयारी करने वाले तालिब इल्मों का कीमती वक्त ज़ाया हो रहा है, जिस पर वालिदैन ने इम्तहानात के दौरान हुकूमत से लोड शेडिंग रुकवाने का मुतालबा भी कर दिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटों के दौरान 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक हो गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? कराची में ट्रैफिक हादसात में खतरनाक हद तक इजाफा देखने को आया। सिर्फ एक दिन के अंदर 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद जो है वो जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। रवा साल की अगर बात की जाए तो जाबाज अफराद की तादाद 300 के करीब पहुंच चुकी है। आज भी मुख्तलिफ इलाकों में शहर के ट्रैफिक हादसात हुए, जिनमें लाडी मस्जिद कॉलोनी में लोडिंग मजदूर ट्रक के चक्कर से एक 60 साल तक सही जाबाक हुआ, जबकि लाडी में फिर सोशल सिक्योरिटी अस्पताल के करीब भी खातून उस्मा अपनी जान की बाजी हार गई। नाजोबाद में किंजा और शारा फैसल पे एक नौजवान जाबाक हुआ। मुझे तौर पर रवा साल के ट्रैफिक हादसात में जाबाक अफराद की तादाद 300 के करीब हो गई, जबकि जिनमें 200 मर्द और 41 खवातीन शामिल है। शहर में तेज रफ्तारी ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी के खिलाफ पुलिस के फलक फांग दावे तो सामने आए, लेकिन अमली तौर पर ऐसे इक़दाम देखने में नहीं आ रहे जिससे जो ट्रैफिक हादसात है उसकी शरह में कमी वाक़ हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब, आप हमें आगाह कर रहे थे। कराची में रिक्शा किरायों को तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। मुसाफिर और ड्राइवर आमने सामने रोज़ाना झगड़े मामूल बन गए। महंगाई और पेट्रोल की कीमतों ने मामला मज़ीद बिगाड़ दिया। शहरी ख़ौर इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बन गई। रिक्शा ड्राइवर का कहना है बढ़ते अखराजात में पुराने किरायों पर गुजारा मुमकिन नहीं। मज़ीद जानते हैं साहर खान से। जी साहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में रिक्शा स्टैंड पर किरायों का तनाज़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुसाफिर और रिक्शा ड्राइवर जो है वो आमने सामने हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर मुसाफिर और रिक्शा ड्राइवर के दरमियान जो है वो तल्ख कलामी के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। इसी हवाले से आज हम मौजूद हैं सदर जुमा गली में, जहां पर इस वक्त मेरे साथ एक रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या वजह है। बताइएगा, ये किराया जो इतना महंगा ले रहे हैं, शहरी जो शिकायत कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? ये किराया इतना महंगा यूँ ले रहे हैं कि गैस वालों का एक रेट नहीं है। किसी का 470 है, किसी का 480 है, किसी का 450 है, कोई 440 भी दे रहा है, कोई 430 भी दे रहा है। दुकान वालों पे कोई इशू नहीं है, सही है, लेकर आते हैं सस्ता, बेचते महंगा है। महंगाई हो गई है, महंगाई हो गई है, ये मसला है। अब हम सवारी को बोलते हैं किराया दो, कोई सी भी सवारी हो, इशू गरीब हो, किसी भी हो, स्कूल वाली हो, वो बोलती है भाई हमारी आमदनी नहीं है। मसला ये आपकी बढ़ेगी, आप लेके जाते हो लेके जाओ, नहीं लेके जाओ तो कम में दूसरा जाएगा कोई, ये मसला है। जी बिल्कुल, रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि जो पेट्रोल है और एलपीजी गैस है उनकी कीमतें जो है आसमान से बातें कर रही हैं, जिसकी वजह से अखराजात भी बढ़ गए और हम काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं और पुराने किरायों में जो है वो गुजारा करना मुश्किल हो गया। जबकि शहरी जो है वो भी हुकूमत से मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात पर जो है फौरी नोटिस लिया जाए और जो किराए हैं उनको बाकायदा मुकर्रर किया जाए, ताकि इस तरह के झगड़ों से और तनाज़ात से बचा जा सके। जी।